સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ થશે। આજથી સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે 29 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, જેમાં મહત્વના 16 બિલો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે, રજૂ કરવામાં આવશે। ત્યારે વિપક્ષની બેઠક મળી, સાથે વડાપ્રધાને પણ સંબોધન કર્યું અને ખાસ એ પણ કહ્યું સંસદના શિયાળુ સત્ર શરૂ થતા પહેલા કે તમામ યુવા સાંસદોને ચર્ચામાં ભાગ લેવાની તક મળવી જોઈએ। ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સુધારા બિલ સહિત 16 બિલ સંસદના આ શિયાળુ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે। ત્યારે થોડીક જ વારમાં સંસદના શિયાળુ સત્ર જે છે તેની શરૂઆત થશે। ત્યારે શિયાળુ સત્ર તોફાની બની રહેવાની પણ પૂરેપૂરી સંભાવના છે। શિયાળુ સત્રમાં સરકાર 16 બિલ રજૂ કરશે। ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સુધારા સહિત અને 16 બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। બહુરાજ્ય સહકારી મંડળીઓ બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવશે। ત્યારે ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન બિલ પણ રજૂ કરાશે। લોકસભા શરૂ થયા બાદ 1 કલાક માટે કાર્યવાહી સ્થગિત કરાશે, જેમાં સમાજવાદી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા અને ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મુલાયમસિંહ યાદવના નિધનના શોકમાં 1 કલાક માટે કાર્યવાહી સ્થગિત રાખવામાં આવશે। ત્યારે થોડીક જ વારમાં સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ થઈ જશે, પરંતુ 1 કલાક માટે તેને સ્થગિત પણ કરવામાં આવશે। તો ખાસ થોડીક જ વારમાં સંસદની કાર્યવાહી જે તે શરૂ થઈ જશે। હાલમાં શરૂ થઈ ચૂકી છે આ કાર્યવાહી। મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, શિયાળુ સત્રની કાર્યવાહીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। હાલમાં અધ્યક્ષતા પહોંચી ચૂક્યા છે અને ખાસ હવે રાજ્યસભા અને લોકસભા બંનેની કાર્યવાહીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। તમામ સાંસદો ત્યાં હાજર છે અને 1 કલાક માટે ખાસ સ્થગિત કરવામાં આવશે આ કાર્યવાહી અને ત્યારબાદ 16 બિલો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે। અમે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી બતાવી રહ્યા છીએ કે આ સંસદનું શિયાળુ સત્ર શા માટે મહત્વનું છે, કારણ કે દેશના વિકાસમાં આગળ વધારતા, પ્રગતિ કરતા કેટલાક એવા બિલો કે જે દેશમાં બદલાવ લાવી શકે છે। આ 16 બિલો પર ચર્ચા કર્યા બાદ તેને પસાર કરવામાં આવશે, જેના કારણે વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે આ બિલ પસાર થઈ શકે છે। પણ શરૂઆતના સમયમાં જ ક્યાંક ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મુલાયમસિંહ યાદવ કે જેમનું નિધન થયું છે, તેમના માટે મૌન પાડી અને ત્યારબાદ 1 કલાક જે સંસદની કાર્યવાહી છે તે સ્થગિત કરવામાં આવશે। આ 16 બિલો કયા કયા હશે એ અમને આપણે બતાવી રહ્યા છીએ। કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરિટી એમેન્ડમેન્ટ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। હાલમાં સંસદની કાર્યવાહીની જ્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। Honorable Prime Minister, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभी सम्मानीय वरिष्ठ सांसदगण, सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं, वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है, तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है।
आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा।
सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श, लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई।